एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ क्लास 12 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन वो टाइम पीरियड है जो एक आदमी अपने बर्थ से लेकर डेथ तक कवर करता है। Few lifespans of a few organisms are given in figure 1.1. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and write in the spaces provided. Examine the lifespans of organisms represented in figure 1.1. तो चलिए पहले अब हम फिगर 1.1 देख लेते हैं। तो इस फिगर में आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन बताया गया है और बाकियों का मैं आपको बता देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एलिफेंट का लाइफ स्पैन इज अबाउट 60 to 70 ईयर्स। रोज प्लांट का लाइफ स्पैन इज अबाउट 35 ईयर्स। Dog has a lifespan of 10 to 13 years. Butterfly का 1 to 2 weeks. Crow 15 years. Banana tree का lifespan is 6 years. Cow has a lifespan of 18 to 22 years. Parrot has a lifespan of 140 years. Crocodile 60 years. Horse 25 to 30 years. Fruit fly has a lifespan of 10 days. Rice plant has lifespan of 4 months. Tortoise 100 to 150 years. Banyan tree is more than 1000 years. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years? Lifespan of different organisms is different. That means कि कुछ organisms का lifespan सिर्फ कुछ दिन का हो सकता है, जबकि कुछ organism का lifespan 1000 years तक हो सकता है। Between these two extremes are the lifespan of most other living organisms. अब इन दो extremes के बीच में ज़्यादातर organisms का lifespan fall करता है। You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their sizes. The size of crows and parrots are not very different, yet their lifespans show a wide difference. पैरेट और क्रो का जो लाइफ स्पैन है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, जबकि उनके साइज में कोई खास फर्क नहीं है। Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a peepal tree. अब अगर हम एक मैंगो ट्री और एक पीपल ट्री को कंपेयर करें तो दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, जबकि उनके लाइफ स्पैन में कई सालों का फर्क है। Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. That is, no individual is immortal except single-celled organism. हर ऑर्गेनिज्म को एक ना एक दिन डेथ फेस करनी है, बट ऐसा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के केस में नहीं होता। वाई डू वी से देर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई डेथ नहीं होती? हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि एक सिंगल सेल जब डिवाइड करता है, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है, तो वो अपना ही जो उसका एक सेल है उसी को दो में ब्रेक करता है और वही उसके डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो उसका कोई भी पार्ट पीछे डेड या डिके रिमेनिंग पार्ट उसका नहीं बच रहा है। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth for several thousand of years? कितने सालों से कितनी सारी species हैं जो continuity show कर रही हैं और अब तक flourish कर रही हैं अर्थ पे। There must be some process in living organism that ensure its continuity. अब ऐसा कोई process है जिसकी वजह से उनकी continuity अब तक possible है? Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted. तो हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं reproduction की। Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, offspring similar to itself. Reproduction वो biological process है जिससे एक organism अपने से similar young ones, offsprings उसके produce करता है। The offspring grow, mature and in turn produce new offsprings. अब यही offsprings जो हैं वो grow करेंगे, mature हो जाएंगे और फिर नए offsprings produce करेंगे। Thus there is a cycle of birth, growth and death. Reproduction enables the continuity of species generation after generation. तो reproduction वो लिंक है जिसके थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक स्पीशीज कंटिन्यू कर पा रही है। You will study later in chapter 5 principles of inheritance and variation how genetic variation is created and inherited during reproduction. अब इस बुक के चैप्टर नंबर 5 में आप लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होती है और इनहेरिट भी होती है। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offsprings. Biological world यानी कि अर्थ पे बहुत सी अलग अलग तरह की स्पीशीज रहती हैं जिनका अपना अलग अलग तरीका है मल्टीप्लाई करने का और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने का। तो ऑफस्प्रिंग्स हैबिटेट्स, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड several other factors are collectively responsible for how it reproduces.
तो एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे, और भी कई से फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है. बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स. रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक जिसमें एक पेरेंट और या ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, या दूसरी जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं. When organism is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. When two parents of opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. जब एक ऑर्गेनिज्म अकेले ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो भी सकती है या बिना गैमेट फॉर्मेशन के भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पर जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट भी होती है, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स. इस मेथड में अकेला पेरेंट यंग वन प्रोड्यूस कर सकता है. एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parents. इस प्रोसेस में ऑफस्प्रिंग्स एक दूसरे की और अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं. आर दीज ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स. वो ऑर्गेनिजम्स जो दिखने में भी और अंदर से भी एक जैसे होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं. फिगर 1.2 में फर्स्ट फिगर आपको दी गई है बडिंग इन ईस्ट की, जिसमें एक बर्ड अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो रहा है. और इसकी सेकंड फिगर में हमें बताया गया है बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा के बारे में, जिसमें एक न्यूक्लियस एक पेरेंट बॉडी दो डॉटर्स में डिवाइड हो रहा है एंड इवेंचुअली ये दोनों अलग हो जाएंगी और ये होती है हमारी डॉटर सेल्स. Let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organisms. अब हम देखेंगे कि अलग अलग organisms में कैसे asexual reproduction होती है. Asexual reproduction is common among single celled organisms and in plants and animals with relatively simple organization. Simple organization मतलब कि cellular level of organization. Asexual reproduction ज़्यादातर single celled organisms में और उन plants और animals में होती है जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो. इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. प्रोटिस्टेंस और मोनेरन्स में सेल माइटोसिस से डिवाइड करता है और न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है. माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, इक्वली सेल जो है वो डिवाइड होता है. दस इन दीज ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो सेल डिवीजन के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी हो जाती है. Many single-celled organisms reproduce by binary fission, where a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. बहुत से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करते हैं जिसमें एक सेल दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है और फिर दोनों इंडिविजुअल्स ग्रो करते हैं और अडल्ट फॉर्म कर देते हैं. बाइनरी फ्यूजन की एग्जांपल है अमीबिया और पैरामीशियम. In yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organisms. यीस्ट में अलग अलग साइज के और छोटे बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं जो इनिशियली शुरू में पेरेंट सेल के साथ रहते हैं, जो कुछ देर के बाद सेपरेट हो जाते हैं और फिर नए मैच्योर यीस्ट ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. Under unfavorable conditions, the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a three-layered hard covering or cyst around itself. Unfavorable conditions मतलब कि वो conditions जिनमें अमीबा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उन conditions में अमीबा थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग प्रोड्यूस करता है जिसे cyst भी कहा जाता है. This phenomena is termed as encystation और इस प्रोसेस को encystation कहा जाता है. When favorable conditions return, the encysted amoeba divides by multiple fission and produces many minute amoeba or pseudopodiospores. The cyst wall bursts out and the spore are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाती हैं तो अमीबा अपना सिस्ट ब्रेक करता है और मल्टीपल फ्यूजन शो करता है और बहुत से माइन्यूट अमीबा या सीडोपोडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है. सो इस प्रोसेस में स्पोर्स आसपास के मीडियम में फैल जाते हैं और बहुत से अमीबा में ग्रो कर जाते हैं. दिस फिनोमिना इज नोन एज स्पोरुलेशन और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोरुलेशन. Members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures.
अब अगर हम बात करें किंगडम फंजाई के कुछ मेंबर्स की और सिंपल प्लांट्स की जैसे कि एल्गे की, तो उनके पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं. The most common of these structures are zoospores that usually are microscopic motile structures. तो इनमें सबसे कॉमन है zoospores जो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते और मूवमेंट भी शो कर सकते हैं. अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, बर्ड्स, गैम्यूल्स. और भी कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि कोनिडिया इन पेनिसिलियम, बर्ड्स इन हाइड्रा एंड गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज. You have learnt about vegetative reproduction in class 11th. What do you think? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Yes, it is a type of asexual reproduction. Why do you say so? क्योंकि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड कोई गैमेट फॉर्मेशन भी नहीं होती. इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? Yes, term clone is applicable here. While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously, in plants, the term vegetative reproduction is frequently used. जैसे प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, वैसे ही प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स. अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब के थ्रू होती है. These structures are called vegetative propagules. और इन सब स्ट्रक्चर्स को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं. Obviously, since the formation of these structure does not involve two parents, the process involved is asexual. इस प्रोसेस में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये asexual reproduction है. In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, each fragment grows into an adult capable of producing offspring. This is also a mode of asexual reproduction called fragmentation. कुछ ऑर्गेनिजम्स में बॉडी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है और फिर वो अलग अलग पार्ट्स पूरा अडल्ट ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर देते हैं जो खुद भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि हाइड्रा में. और इस asexual रिप्रोडक्शन के मेथड को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं. You must have heard about the scourge of water bodies or about the terror of Bengal. Scourge कुछ भी ऐसा जो बहुत परेशानी खड़ी करे. This is nothing but the aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water. Water hyacinth is a weed जो standing water पे और बहुत जल्दी grow करता है. It drains oxygen from the water which leads to death of the fishes. ये weed पानी में से dissolved oxygen use कर लेती है जिससे fishes की death हो जाती है. You will learn more about it in chapter 13 and 14. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaves. Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water bodies in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. So इस weed को हटा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. Are you aware of how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? Have you seen small plants emerging from the buds of the potato tuber from the rhizomes of banana and ginger? When you carefully try to determine the sites of origin of new plantlets in the plant listed above, you can notice that they all invariably grow from nodes present in the modified stem of these plants. तो nodes वो area है, वो point है जहाँ पे leaf या bud form होता है. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. तो जब भी ये जो nodes हैं ये soil या water के contact में आते हैं तो ये roots या new plant form करते हैं. Similarly, adventitious bud arise from the notches present at the margin of leaves of bryophyllum. तो bryophyllum के जो leaves हैं उन पे भी nodes, buds जो हैं वो produce होते हैं. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. It is interesting to note that asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have relative simple organization, like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. तो जब एडवर्स मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल्स दीज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. अनफेवरेबल कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए भी करते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशन क्रिएट होती है. व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन? ड्यू टू वेरिएशन. Asexual, vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by higher plants. Higher plants जो हैं उनमें हमें asexual यानी कि vegetative mode और sexual mode of reproduction दोनों देखने को मिलेंगे. But on the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. But animals में क्या होता है कि ज़्यादातर sexual mode of reproduction ही देखने